afternoon. Greetings of the day. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. You must have come across people, especially women with brown color patches on their face. They look like freckle, like spots forming large flat patches. This is nothing but melasma. Melasma is a common chronic skin condition in India. According to a study conducted across 4 Indian cities, reveals that more than 80% of the population presents skin color heterogeneity on the face, irrespective of age and gender. This heterogeneity mainly results from hyperpigmented spots and melasma. Indian skin tone is more prone to pigmentary disorders. It occurs mainly in women 90% and 10% of males of all ethnic and racial groups. Around 20 to 30% of 40 to 65-year-old women present a facial melasma. Melasma sufferers have been misinformed about aspects of this common hyperpigmentation issue. This can lead to frustrating setback in treatment. So, to avoid all these hazards and to keep you informed, today we are here to know about the management of melasma from an expert. So, let's connect today with our expert, Dr. Yuki Levy, live from Patna, to make us aware on melasma and its management. With over decades of experience, Dr. Pallavi brings a wealth of expertise to the field of dermatology. She earned her MBBS and MD degrees from a very prestigious medical college, solidifying a foundation of knowledge and skill, currently serving as an assistant professor, Department of Skin and VD, IGIMS, Patna. Today, we are privileged to have you with us, Dr. Pallavi. A very warm welcome to you. नमस्ते थैंक यू नमस्ते डॉक्टर। और आज हम बात करने जा रहे हैं मलाज़मा पर, और इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है और कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि ये है क्या। आमतौर पर जब महिलाएँ, क्योंकि उनमें काफ़ी हम देखते हैं मलाज़मा के केसेज़, उनसे बोला जाता है कि लेट्स गो टेक एडवाइस फ्रॉम अ क्वालिफाइड डर्मैट, लेट्स गो टू अ डॉक्टर। उनका कहना होता है कि ये तो हम एज हो रही है, ये तो होगा ही। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि ये मलाज़मा है और इसका इलाज भी हो सकता है। तो आज इस सेशन में हम इन्हीं सब पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे डॉक्टर। सबसे पहले ये मलाज़मा है क्या? melasma it is an acquired hyperpigmentation on the face occurred mainly most commonly in our country maybe due to hormonal changes or sun exposure or maybe wrong cosmetics people are using. They are buying their own from the markets without consulting their doctors. It may also causes melasma or pigmentation on the skin, on the face, and other parts of the body also get pigmented sometimes because of oral medicines or because of topical medicines or cream they are using. Doctor, we know about this one term, hyperpigmentation or pigmentary disorders, and then there is melasma. So are they the same or they are different? No, there are many causes of hyperpigmentation on the face or in the body. One of them is melasma. This is an acquired hyperpigmentation disorder of the skin. It mainly occurs on the face, forehead, chin, cheek, and malar area of the or any age group and in any sexes or any ethnic group. Okay. Are there any symptoms also associated with melasma, or it's just the appearance? It's just the No, signs. there is no symptoms. It just appear as the dark, light or dark brown pigmentations on the face, mainly on the face. Yeah. ओके डॉक्टर, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं melasma के? वो कौन लोग हैं जो ज्यादा रिस्क पर होते हैं melasma? जो लोग बहुत ज्यादा सन एक्सपोज में रहते हैं या हार्मोनल डिसबैलेंस है इनका, जिसमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, अगर कोई उनको थायराइड प्रॉब्लम है या फेमिलियर हिस्ट्री भी अगर है कि फैमिली में अगर ट्रेड कर रहा है कि मदर को है, मासी को है, तो बुआ को है, तो देर इज अ चांसेस ऑफ getting it in next generations in more. And there is if patient is using cosmetics of their own without consulting their doctors, and sometimes oral medicines, patient are taking oral medicines for any type of antibiotic or epilepsy, their phenytoin group may cause hyperpigmentation on the face and the body also.
There are this may be genetic cause. This type may cause hyperpigmentations of the face and body. Doctor, we have also seen pregnant women with melasma. So, pregnancy is also a risk factor. Yeah. So, my question is, we have many times seen pregnant women with melasma. तो pregnancy भी क्या एक risk factor है? It is not only the risk factor, but one of the commonest cause in our country. That is the risk factor in pregnancy. But we have seen that in pregnancy, it is due to the hormonal imbalance. So it goes off after delivering the baby, after sometimes 6 months, 1 year or 2 years, so that the lesion fades off. Okay. Now, when a person comes to you with melasma, how do you diagnose? Just by physical investigation, clinical investigation, you can be sure कि ये melasma है या नहीं, या फिर कुछ test भी conduct करने पड़ते हैं? Earlier, there was only clinical diagnosis we perform in our clinical OPDs, but there are other instruments like Woods lamp examination is also there. Dermatoscope, it is a type of instrument through which we can see the pigmentation, the depth of the pigmentation in the skin, so we can differentiate whether there is a types. There are another type. There are different types of melasma also. So it is early stage or it is darker, more in the dermis. Then it depends on the prognosis also. If there is more darker or more dermal melasma, then the prognosis is little bit worse or takes times to goes off. And later in last stage, we can perform histopathology also. Sometimes if there is a there is a clinical differentiation is there between the melasma or other hyperpigmented disorder. If you have to differentiate, then we can go for this dermatoscope or then skin biopsy can perform. But mainly we can do with clinically only. तो क्या इसमें ये भी पता किया जाता है कि कितना डीप गया है या किस कहाँ तक melasma बैठा है? Types of melasma, epidermal and dermal and mixed type of melasma. तो pigment biopsy या dermatoscope से हम लोग ये perform कर देख सकते हैं कि वो pigmentation किस level पे, epidermis पे है, dermis पे है या mixed है. Okay, doctor. Doctor, we always say, especially in medical field, that prevention is better than cure. Any way to prevent it? Especially आपने कहा कि अगर family में है, तो chances बढ़ जाते हैं. अगर माँ को है, मासी को है, तो chances बढ़ जाते हैं. कोई तरीका कि इसे हम prevent कर सके या prolong कर सके, delay कर सके? Sunscreen, we can use sunscreen. Okay. At the earliest age we start, and the best way to protect it from natural protection from sun also we can use umbrella, hat, sunglass, mask. This can delay your pigmentations or skin tanning or your skin any skin diseases. It will you go with natural protection with the sun. ओके, तो सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो फिजिकल प्रोटेक्टर्स हैं, हैट हुआ, सनग्लासेस हैं, उसे भी ऐड ऑन किया जा सकता है. सनस्क्रीन पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी डॉक्टर. हमारे देश में बहुत कम ही लोग हैं जो सनस्क्रीन को एक रेगुलर रूटीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एज अ रूटीन स्किन केयर थिंग. तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी क्यों जरूरी है कि हम रोज सनस्क्रीन लगाएं. It's give you protection from the ultraviolet radiation. And it's delay your tanning and wrinkles. Sometimes at early age stage, patient are feeling I am having wrinkles at this stage only. So if you use sunscreen at early stage, it delay your wrinkles also, your pigmentation, your facial melanosis, or it delays. The sunscreen we should start early, and there is different types of sunscreen you should go with. Like nowadays, people are going outside daily for your work. Earlier female do most of the time. Female are their home, but now they are working. They are more females are more working. They are more going in outdoor fields. So we should use sunscreen better. Start early. In your life, start as early as possible with a sunscreen. So make sunscreen a routine skincare thing.
use it regularly, religiously. Now, with sunscreen comes so many doubts, so many questions, doctor. And as you said, sunscreen is a very powerful weapon against melasma or any other skin related issue. So, we would like to talk about sunscreen in a stretch. First of all, doctor, when we go out to buy a sunscreen, there are so many informations written on the box or on the tube, and we don't know, what to go for. There are so many things like starting from SPF to boot star rating to PA factor to whether it's broad spectrum or not, etc., etc. So, what are the basics to go for? अगर एक आम इंसान जा रहा है, कौन सी चीजें हैं जो इंश्योर करे कि उसके सनस्क्रीन में है? सनस्क्रीन डिफरेंट टाइप्स के सनस्क्रीन है और डिफरेंट स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा प्रिस्क्राइब करें, किस टाइप के सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब करेंगे और किस टाइप का सनस्क्रीन पेशेंट or affordability is also the main criteria for the sunscreen also, because we should apply sunscreen at least 3 times a day between 8 to 4 p.m. और पेशेंट के पॉकेट पे तो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, पेशेंट के स्किन टाइप्स में भी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द सीजनल वेरिएशन ऑल्सो. इन समर वी प्रेफर डिफरेंट, in winter we prefer different, in rainy season there is change, and the people's work also कि कोई ज्यादा आउटडोर काम करता है, फील्ड में ज्यादा रहता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, टाइप के यूज करेंगे. और जिनका इंडोर है तो उनके लिए डिफरेंट आता है कि उनको कौन सा UVA चाहिए, BK चाहिए. तो ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. बिल्कुल, तो हमारी स्किन टाइप क्या है, हमारा रूटीन किस तरह का है, कितना एक्सपोज़र अंडर द सन है, वेदर क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि सनस्क्रीन क्या होना चाहिए। आपने कहा कि अगर आप इंडोर हैं, तो भी उस हिसाब से आपको अपना सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए और एक बहुत आम सवाल ये होता है, एक आम धारणा ये है कि सनस्क्रीन यानी जो हमें सन से जो हार्मफुल रेडिएशन एमिट हो रहा है, उससे प्रोटेक्शन दे। तो अगर हम बाहर जा ही नहीं रहे हैं, हमारा एक्सपोज़र है ही नहीं, तो फिर सनस्क्रीन घर के अंदर भी लगाने की ज़रूरत क्यों है डॉक्टर? सनस्क्रीन घर के अंदर भी लगाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आजकल हम लोग LED लाइट्स यूज करते हैं, जिसमें कि अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन एमिट करता है. मोबाइल लाइट यूज करते हैं, मोबाइल फोन हमेशा यूज करते हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करता है. विंडो से कई बार लाइट्स आते रहते हैं, जो फिर कार में हम लोग बैठते हैं तो वो भी टिंटेड ग्लास से विंडो लाइट्स आते रहते हैं, बालकनी में जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम 100% घर में पैक्ड होके रह रहे हैं. टीवी है, लैपटॉप है, उन सब से अल्ट्रावायलेट रे रह रहे हैं, तो हमारा एक्सपोजर कहीं ना कहीं हो जा रहा है घर में रहने के बावजूद भी. बिल्कुल, तो अनलेस एंड अंटिल हम बिल्कुल ही अंधेरे में रह रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। तो अगर थोड़ा-सा भी लाइट वहाँ पर है, चाहे वो आपके गैजेट का है बिकॉज़ हम आजकल बहुत सारा वक़्त हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत बढ़ गया है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पैड्स हैं, टैबलेट्स हैं, इसके अलावा भी तो इस तरह से जो एक्सपोज़र है, वो किसी न किसी फ़ॉर्म में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़रूरत है कि हम अपने स्किन को बचा के रखें और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सनस्क्रीन को रेगुलरली इस्तेमाल करें। एसपीएफ को लेकर भी लोगों में बहुत डाउट रहता है क्योंकि 15 से लेकर 90-95 तक के एसपीएफ मार्केट में अवेलेबल है और लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा हम एसपीएफ चूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो नॉर्मली इंडियन क्लाइमेट में कितना हम एसपीएफ चूज़ करें, खास तौर पे अभी समर्स हैं, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर? किस तरह नहीं, से? जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है और घर में रहना है तो 30 to 50 के विद इन का रेंज का SPF वाला काफी है हमारे लिए यूज करना. जो बहुत रेगुलरली आउटडोर जाते हैं उनके लिए थोड़ा हाई SPF वाला यूज करना है, क्योंकि एक तो संस्कृत का लोगों का एक मिथ है कि हम एक बार यूज कर लिया हो गया, अब दिन भर हम हुँ, उससे प्रोटेक्ट रहेंगे, हमें प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हम सन में खड़े हो सकते हैं. ऐसा हुँ, नहीं है. सनस्क्रीन का एक टाइम ड्यूरेशन बॉन्ड है कि वो जैसे कोई भी मेडिसिन का एक टाइम है कि हम उसको BD लेते हैं, TDS लेते हैं, 2 बार लेते हैं, दिन में 3 बार लेते हैं, 4 टाइम्स लेना है. तो ऐसे ही सनस्क्रीन के लिए भी है कि वो एक सनस्क्रीन 2 आवर्स तक ही एक बार अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका एक लेयर टाइप फॉर्म करना है. जो क्वांटिटी एक्चुअल में 2 आवर्स प्रोटेक्शन देगी और SPF, वो हम लोग नॉर्मली उतना क्वांटिटी जनरल डेज में नहीं यूज करते हैं. तो वो एक क्वांटिटी है जो एक 0.5 mm का लेयर स्किन पे फॉर्म करना चाहिए
उसके तभी हमारा जाके वो 2 आवर्स तक हमें प्रोटेक्ट देगा, और एवरी 2 आवर्स हमें सनस्क्रीन रिपीट करना है। अब जो हम लोग स्विमर्स हैं, उनके लिए भी सनस्क्रीन है, हम्म। तो वो 45 मिनट से ज्यादा वो वर्क नहीं करेगा। अब वो सोचेंगे हम लगा लिए और 2 घंटे से हुए, तो वो इसलिए आउटडोर्स हैं जो इंडोर्स हैं उनके लिए सबके लिए डिफरेंट है। और उतना क्वांटिटी है, सिर्फ एसपीएफ इंप्रूव कर देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, हम बहुत हम्म। एसपीएफ लगा लिए और हम धूप में खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत नहीं, ऐसा प्रोटेक्शन नहीं देंगे। सनस्क्रीन जब हम लेने जाते हैं, गुड स्टार रेटिंग भी आजकल बहुत देखने को मिलती है, एफपीए प्लस 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 भी होता है, तो ये क्या पैरामीटर्स है? नहीं, एसपीएफ हो, गुड स्टार रेटिंग हो, पीए प्लस प्लस हो, सब कुछ स्किन के टाइप पे और पेशेंट के आउटडोर एक्सपोजर पे ही डिपेंड करता है। ये मैंने आपको पहले भी जैसे कहा कि ये नहीं कि 5 प्लस प्लस दे दिया और आप वो सनस्क्रीन लगा के आप सोचे वाह अब हम पूरे दिन इससे खेल सकते हैं बाहर में जाके, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या हम हिल्स पे चले गए, ठीक है, तो हम सनस्क्रीन लगा दें, हमारा टैनिंग नहीं, हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन भी मस्ट है। बीच पे चले गए हम आराम से लगा के और टैन हो, तो वो आप टैन होंगे, क्योंकि उसका एक ड्यूरेशन है, वो मस्ट है। और क्वांटिटी जितना को वो क्वांटिटी हम लोग एक्चुअली नहीं यूज कर पाते हैं इंडियंस, और वो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि आप बिल्कुल। बिजी तो और कॉस्ट ऑल्सो। बिल्कुल। तो हम कितनी क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं, रीअप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही सनस्क्रीन हमने अपने स्किन के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से चूज़ किया है, नहीं किया है, रेगुलरली इसे यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन, और अगर डाउट है तो आप प्लीज़ अपने डर्मैट के पास जाइए, अपने नियर बाय क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए, उनकी मदद लीजिए। वो हेल्प करेंगे आपको एक अच्छा सनस्क्रीन चूज़ करने में। सनस्क्रीन कॉस्मेटिक ब्रांड्स के भी आते हैं, बहुत सारे मार्केट में है, ओवर द काउंटर जो मिलते हैं, मेडिकेटेड भी होते हैं। आप कौन-सा रिकमेंड करती हैं? मेडिकेटेड लेना चाहिए या जो अवेलेबल है? जो मार्केट में अवेलेबल है उन सारे प्रोडक्ट्स पे एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं होता है, तो मैं कभी भी वो प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी। मैं ऑलवेज एडवाइस करूंगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो भी अच्छे ब्रांड के सनस्क्रीन हो और आपके स्किन के टाइप का हो, ऑर्गेनिक में लेना है या इनऑर्गेनिक है, लोशन लेना है, एक्वस फॉर्म में लेना है, जेल फॉर्म में लेना है, क्रीम फॉर्म में लेना है, आपके स्किन को क्या सूट करेंगे वो आपको डॉक्टर, आपका एक्ने स्किन है, नॉर्मल स्किन है, एजिंग हो रहा है, तो वो आपको आउट कहीं घूमने बाहर जाना है ट्रिप पे, या फिर आपको स्विमिंग करना है, तो उन सब चीजों पे आपको अच्छे से आपके डॉक्टर से एडवाइस करके आपको सनस्क्रीन सेलेक्ट करके बताएं। तो मुद्दे की बात ये है कि मेलाज़्मा को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। सिर्फ़ मेलाज़्मा ही नहीं, कोई दूसरे स्किन इश्यूज़ हैं जो वो एड्रेस करता है, प्लस वो आपकी स्किन को एज होने से भी बचाता है, या एटलीस्ट एजिंग को डिले करता है। तो इसलिए एक तरह से वो एंटी एजिंग क्रीम की तरह भी डॉक्टर वर्क करता है, सनस्क्रीन। या या डेफिनेटली आप इस सही टाइम पे कुछ भी स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो वो आपका एजिंग डिले करेगा, रिंकल्स डिले करेंगे। बिल्कुल। वापस हम मेलाज़्मा पर बात करते हैं। डॉक्टर, आपने बताया कि किस तरह से हम सनस्क्रीन का रेगुलर इस्तेमाल करके या सन प्रोटेक्शन करके, चाहे वो फिज़िकल बैरियर्स हों, उनकी मदद से मेलाज़्मा को डिले कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं? जब किसी को मेलाज़्मा होता है, वो आपके पास आया, आपने डायग्नोसिस किया, उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे तय होता है? क्या ऑप्शंस अवेलेबल? सबसे पहले तो मैं पेशेंट को बहुत अच्छे से काउंसिल करूंगी, और उनका ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मैं आए और 5 दिन में मेरा एकदम ये पिगमेंटेशन साफ हो जाए और दोबारा ना आए। पेशेंट्स की मेनली आजकल यही कंसर्न रहता है, अच्छा मैंने इतना एक्सपेंड कर दिया, मेरा दोबारा आना आए। ऐसा कोई भी आदमी आपको गारंटी करके डॉक्टर नहीं देगा, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है और किस तरह से आपको मेलाज़्मा हुआ, नॉर्मल है, बहुत सारे मेडिसिन है, चाहे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनकी वजह से भी मेलाज़्मा होता है। तो पेशेंट को पहले तो हम लोग को देखना हुँ। पड़ेगा कि पेशेंट को काउंसिल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्किन डिजीज टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन पे हम लोग देखेंगे कि अगर बहुत कम है उसका, ठीक है, तो सिर्फ हम टॉपिकल मेडिसिन पे रखेंगे। और अगर उसको नहीं, तो फिर आजकल बहुत सारा ओरल मेडिसिन भी मेलाज़्मा के लिए आ गए हैं, जो कि हम लोग खाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। केमिकल पील है जो कि हम लोग पेशेंट को मेलाज़्मा के लिए अप्लाई करते हैं।
क्लिनिक्स में। और लेटर ऑन अगर बहुत रिफ्रैक्टिव है और बहुत डीप है, अगर हमारे टॉपिकल से काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग कई बार लेजर भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप लेजर भी करवा सकते हैं मेलास्मा के। बिल्कुल, तो मेडिकल मैनेजमेंट भी है, प्रोसीजर्स भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम डॉक्टर के पास जाएँ और उनकी एडवाइस लें और उसे फ़ॉलो करें। डॉक्टर, एक बहुत सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है इस वक़्त, वो ये कि आम तौर पे जो मेलाज़्मा है, वो ओवरनाइट तो नहीं होता, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट? कि आज हमें दिख रहे हैं छोटे-छोटे दाग, फिर धीरे-धीरे वो बड़े हो रहे हैं। तो एक तरीका ये है कि हमको आज दिखा कि कुछ एब्नॉर्मल हमारी स्किन में लग रहा है, कुछ पैचेस उभर के आ रहे हैं और हम तुरंत एक डॉक्टर के पास गए और उनसे सलाह ली और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। फिर एक तरह के लोग होते हैं जो पहले होम रेमेडीज़ करते हैं, दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, ओवर द काउंटर मेडिकेशन कर लिया, कोई भी टॉपिकल क्रीम ले ली, उसे लगाए जा रहे। Only when they realize that the condition has gone out of their control और चीज़ें और वर्स होती जा रही है, तब वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपसे मेरा सवाल है कि क्या होम रेमेडीज़, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, वो इतनी चीज़ें बता देते हैं, ये सब वर्क करता है? या इनिशियली जब हमें छोटे-छोटे दाग-धब्बे नज़र आ रहे हैं, तभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैं होम मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं है मेलान्मा जो आप लगाएँगे और आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा। एक आप नेचुरल प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि ठीक है, मैं घर में रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है सन का। और हुँ, दूसरी बात है कि मेडिसिन्स के लिए और इसके लिए तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा कि और लेकिन ओवरनाइट तो ना पिगमेंटेशन आएगा और ना ओवरनाइट जाएगा। ये हुँ, एक लॉन्ग प्रोसेस है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटा-सा पिगमेंटेशन हुआ, आप उसको नोटिस नहीं किए, आप कई बार किसी फ्रेंड से ट्रीटमेंट ले लिए या ऑनलाइन सर्च करके ले लिया। और कई बार होता है कि गलत मेडिसिन्स यूज़ करने से भी आपका वो पिगमेंटेशन बढ़ता रहता है, जिसको हम लोग ओक्रोनोसिस बोलते हैं, कि गलत मेडिसिन्स हमने परचेज़ कर लिया या ऑनलाइन सर्च करके ले लिया या फ्रेंड है उसको वो सूट किया तो मैंने भी वही एडवाइस हुँ, अप्लाई कर लिया। उसने मुझे एडवाइस किया तो वो कई बार होता है कि आपका पिगमेंटेशन और बढ़ा देता है। और कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि गलत मेडिसिन्स मार्केट में इतने आ रहे हैं विदाउट जो पेशेंट के डॉक्टर्स के बिना नोइंग ले रहे हैं तो उससे किडनी डिजीजेज़ वगैरह भी रीनल फेलियर में भी पेशेंट जा रहा है। तो मैं ऑलवेज़ एडवाइस करूँगी कि आप इनिशियली स्टार्ट ही हो रहा है तो आप एक बार कंसल्ट कर लें डॉक्टर से हुँ, और फिर बिल्कुल। अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा समय भी बचेगा, हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारी एनर्जी भी बचेगी और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारी हेल्थ, हमारी स्किन बचेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपको लग रहा है कि स्किन में दाग-धब्बे होने शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर नियरबाय डर्मा, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। कई ऐसे पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं जहाँ पे भी ये दावा किया जाता है डॉक्टर कि हम जो है ब्लीच करते हैं और पीलिंग करते हैं, केमिकल पीलिंग खास तौर पे पार्लर्स भी ऑफर करते हैं और वो ये दावा करते हैं कि इससे आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। दर्शकों के लिए यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि हम एक डॉक्टर के पास जाकर ही प्रोसीजर्स करवाएँ अगर पिगमेंटेशन या मेलाज़्मा के प्रोसीजर्स के लिए हम जा रहे हैं? So, while the doctor is rejoining, so let's go through this whole session in a minute's time by the time she gets back to us. So today we are talking about melasma और जैसा कि डॉक्टर ने कहा melasma जो है वो कई तरह की चीज़ों से हो सकता है हमारी सोसाइटी में कॉमन इसलिए है क्योंकि धूप पे एक्सपोज़र कई बार हमारा बहुत बढ़ जाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी, डिसबैलेंस की वजह से भी महिलाओं में ख़ास तौर पर मेलाज़्मा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होता, उनमें भी होता है, लेकिन तादाद महिलाओं में ज़्यादा है। और बहुत ज़रूरी है कि हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और रेगुलरली करें। बिना कहते हैं ना कि कोई नागा नहीं होना चाहिए, उसमें रोज़ हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है और अलग-अलग स्किन टाइप के लिए अलग-अलग तरह के, अलग-अलग फ़ॉर्मुलेशन के सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं, जेल में, स्प्रे में, लोशन बेस्ड और सब तरह की चीज़ें अवेलेबल है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सही प्रोडक्ट तक पहुँचे और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर की सलाह लें। और इस केस में एक डॉक्टर है जो डर्मैट है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो एक
क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मैट के पास जाइए, उनसे इलाज लीजिए, इलाज पूरा कीजिए, वो भी उतना ही ज़रूरी है। वो इलाज मेडिकल मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो इलाज जो है वो प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, बहुत तरह के प्रोसीजर्स भी डॉक्टर पल्लवी ने हमें बताए जो अवेलेबल है और उन प्रोसीजर्स के ज़रिए भी आप जो मुलाज़मा है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिकरेंस ना हो, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें, कि वाक़ई में बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं मुलाज़मा की और जब मुलाज़मा पे बात हुई तो ये समझ में आया कि सनस्क्रीन का सिर्फ़ इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक डॉक्टर पल्लवी, कैन यू हियर मी नाउ? तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर पल्लवी एक बार फिर हाँ, हमारे साथ जुड़ें। डॉक्टर, अब आपको आवाज़ आ रही है हमारी? या ओके, तो ये सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या मेलाज़्मा का परमानेंट क्योर संभव है? क्योंकि जो लोग मेलाज़्मा से पीड़ित होते हैं, वो कई बार ये सवाल पूछते हैं कि व्हेन विल इट कंप्लीटली गो अवे परमानेंटली? तो क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगी? कई बार होता है कि जो प्रेगनेंसी होता है या किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको मेलाज़्मा आता है, तो वो सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, बिना ट्रीटमेंट के भी आपके थोड़ा टाइम लगता है, वो अपने आप गोज़ ऑफ हो जाता है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर वो आपको रिपेयर होने के चांसेस रहेंगे। कई बार रहता है कि पेशेंट कुछ ऐसा ओरल मेडिसिन्स ले रहे हैं, उसकी वजह से होगा, तो वो जब आप पिन ऑफ करेंगे, तो वो आपका वापस से मेलाज़्मा ठीक हो जाएगा। कई बार होता है जेनेटिक और हेरिडिटरी जो फेमिलियर केसेस है उसमें थोड़ा ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होता है। रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं कि उनका चलो ठीक हो गया, फिर थोड़े टाइम के बाद ठीक वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी के टाइम में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, पहले उतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे। अभी पेशेंट भी काफी क्यूरियस है और मैं बताऊंगी कि अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम लोग क्योर कर ले हो जाता है, पेशेंट सेटिस्फाइड है। तो बिल्कुल, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी टेक्नीक्स हैं और लगातार उसमें एडवांसमेंट हो रहा है, बस ज़रूरत है कि हम डॉक्टर के पास जाएँ, सही इंसान के पास जाएँ जो कि एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है और सही इलाज लें और इलाज पूरा करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। सेशन को हम वाइंड अप करें डॉक्टर, उससे पहले कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं हमेशा एडवाइस करूंगी, एक तो आप सनस्क्रीन यूज कीजिए, दूसरा बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप कोई भी क्रीम यूज मत कीजिए, क्योंकि वो फिर आपका इंक्रीज कर देता है पिगमेंटेशन हो फेस का या बॉडी का या कुछ भी है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट या ऑनलाइन प्रोडक्ट आप मत रिव्यू दे के आप ले परचेज कर ले, क्योंकि एवरी स्किन इंडिविजुअल अलग है। वो 10 ने लिखा रिव्यू और वही चीज आपको सूट करेगा ये नेसेसरी नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, या डेली बेसिस पे भी आप कौन सा सनस्क्रीन यूज करना है, कौन सा फेस वॉश यूज करना है, आपको आपके स्किन को लेजर नीड है। कई बार पेशेंट होता है कॉल कर देते हैं कि हाँ आ जाते हैं, नहीं सर्च करने का ऑप्शंस होना चाहिए ना। पेशेंट कई बार यूट्यूब सॉरी ऑनलाइन सर्च करके आ जाते हैं कि नहीं ऑनलाइन इसमें दिया हुआ है लेजर और मुझे लेजर कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है। आप कंसल्ट कीजिए, आपको क्या आपके स्किन को क्या सूट करेगा वो डॉक्टर आपको जज करके बताएंगे और उस अकॉर्डिंगली आप जाइए। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हम एक डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर पे भरोसा बनाए रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पल्लवी, बहुत अच्छी बातचीत हुई और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये पूरा सेशन रहा। इट वाज़ वंडरफुल hearing you. Thank you so very much. थैंक यू। And viewers, thank you for your active participation in today's session. Stay happy, stay healthy, stay connected with us. Thank you. Have a good day.